قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدرته القائلون ولا يحصين مولاتهم ولا يؤدي حق المجتهدون. وترى الخلائق بقدرته ونصر الله برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمام علي عليه السلام خشت رب القضاء اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس پروردگار کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس عزاداری جیسی نعمت میں بیٹھ کر سرفراز ہو. اور اس پروردگار کا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ ابھی اس وقت ایک ایسی عبادت میں مصروف ہے جسے ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے. جسے ذکر اہل بیت اور یوں تو بڑے بڑے مقامات پہ بڑے بڑے جگہوں پہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس وقت ہم لوگ کائنات کی ایک ایسی عظیم عبادت میں مصروف ہیں کہ جسے ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے. اور یہ بتا دوں کہ یوں تو پہلے سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ذکر جو ہے 1400 سالوں سے ابھی تک چلا آ رہا ہے. کیا علت ہے, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے کہ ابھی تک باقی ہے اور الحمدللہ باقی رہے گا. یہ اس کا سبب آگے بتاؤں گا. دیکھیے یوں تو بڑے بڑے مقامات پہ بڑے بڑے جگہوں پہ لوگ مارے گئے لیکن ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا, ان کا نام و نشان نہیں ملتا. لیکن یہ فضیلت اہل بیت کی ہے کہ جتنا ان کے ذکر کو چھپایا گیا ہے اتنا ان کا ذکر بڑھتا گیا. اب اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ بھائی یہ ذکر کیوں ابھی تک باقی ہے, ایک جملہ کہہ دوں کہ عزیز ذکر وہ غیروں کا ذکر ہے جو ان کے تذکرے کی وجہ سے باقی ہے, لیکن یہ اہل بیت کا ذکر ہے جن کی وجہ سے ہم ابھی باقی ہیں. انہی کی وجہ سے ہم ابھی باقی ہیں. ہماری وجہ سے اہل بیت نہ باقی ہے نہ یہ تذکرہ.
اب یہ ان کا ذکر اور ہمارا ذکر یہ میدان عمل میں جب دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت کا ذکر کیوں باقی ہے، اہل بیت کا ذکر کیوں باقی ہے۔ تو جب میدان عمل میں آپ جائیں گے تو دیکھیں دوسروں کا ذکر کسی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ذکر اہل بیت ہے، ذکر محمد و آل محمد ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا یوں کیا جائے جملہ بدل کے، یہ وہ ذکر ہے جو لوگوں کو زندگی دیا کرتا ہے، ان لوگوں کو حیات بات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بات آ گئی تو کہہ دوں کہ اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک بار اور زندگی فراہم کر دوں، دے دوں، تو تم اس زمین پہ جا کے کیا کرو گے؟ اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک بار زندگی اور دے دوں، فراہم کر دوں، تو تم اس زمین پہ جا کے کیا کرو گے؟ تو سارے فرشتے یک بیک ایک زبان ہو کے کہا کہ اے پروردگار، اے مالک، اگر تو ایک بار مجھے اور زندگی دے دے تو میں اس زمین پہ جا کے فرش ادا بچھا کر امام حسین کا ذکر کروں گا۔ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنا فائدہ ذکر ہے اہل بیت، کتنا کثیر سے ذکر ہے اہل بیت۔ پھر اب آئیے آپ، یہ کوئی اور ذکر کی بات نہیں، کل میں نے کہا تھا کہ اس کو بیان کروں گا خود کو برمدل بابا۔ مولا نے کب کہا یہ جملہ؟ سجدے کی حالت میں۔ حالت میں۔ اور میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی مولا کائنات ہر مقام پہ کامیاب نظر آئے، لیکن یہ آخر وجہ کی ان کے سجدے کی حالت میں یہ جملہ کہا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور مولا کا قول بھی ہے کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس ذہن میں ایک روایت یاد آ گئی، کتاب کا نام ہے اصول کافی، اصول کافی کی یہ روایت ہے، جس میں ایک اپنے زمانے کے مشہور و معروف شخصیت ہے جن کا نام ہے حسن بن عبداللہ۔ وہ اپنے زمانے کے بہت متقی، بہت پرہیزگار اور حقوق العباد اور حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق اللہ انجام دیا کرتے تھے۔ یوں کہا جائے ساری واجبات کو اپنے ٹائم پہ ادا کرتے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب دربار میں جاتے تھے تو جو لوگ شراب جوا کھیلتے رہتے تھے تو اس دور میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ٹوک دے، لیکن ان کا کمال تھا کہ سیدھا ٹوک دیتے تھے، یہ کام یہاں پہ انجام نہیں کیا۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو یک وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور حسن بن عبداللہ آ کے وہیں نماز پڑھا، انہوں نے بھی یک حسن بن عبداللہ کی امام پہ نظر پڑی اور امام نے بھی حسن بن عبداللہ کو دیکھا اور حسن بن عبداللہ نے امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر یک دوسرے دن ایسے ہی ہوا، تیسرے دن تو ایک دن مولا نے کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ اے حسن بن عبداللہ، تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند ہے کہ حقوق اللہ یہ اب انجام دے رہے ہو، حقوق العباد بھی، اور نماز وقت کے پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہو، اور یہاں تک کہ قبیلے میں خیال رکھنا، یہ جو پڑوسیوں کا خیال ہوتا ہے وہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن امام نے کہا اے حسن بن عبداللہ، ساری چیز تمہارے پاس ہے لیکن ایک چیز تمہارے پاس نہیں ہے جو وہی ضروری ہے۔
अब ये हैरान में आ गए। हर आदमी सोचे कि हम हर चीज वक्त पे कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरे पास क्या छूट गया। तो इमाम ने कहा कि वो चीज़ है, वो इमाम ने बताया नहीं, इमाम ने बताया नहीं, लेकिन ये इशारा दे दिया कि सारी चीज़ तुम्हारे पास है, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे पास। अभी ये हैरान हो गए कि हम किस दीन पे चल रहे हैं, किस इस्लाम पे चल रहे हैं, और इमाम कह रहे हैं। ये कशिश के हालत में हसन बिन अब्दुल्ला अपने घर चले गए, इमाम भी अपने। फिर दूसरे दिन इमाम भी यार तशरीफ लाए, हसन बिन अब्दुल्ला भी तशरीफ लाए। फिर यह तीसरे दिन हसन बिन अब्दुल्ला सिराहा ने गया और उसने कहा कि मौला ये बताइए कि मेरे पास है क्या, मैंने तो सारी चीज़ अपना रिसर्च कर ली, लेकिन आखिर वो चीज़ है क्या। तो इमाम ने कहा कि तुम्हारे पास मार्फत है। मार्फत बहुत ज़रूरी है, मार्फत, लेकिन जानना और है और पहचानना और है। सही बात है। जानना, जैसे हमको कह दे कोई कि भाई सोनू साहब से भाई से मिलना है, तो हम कह दें कि वहाँ से यहाँ तक आप चले जाइए, यहाँ से वहाँ जाइए, वो मिल जाएगा, लेकिन वो रास्ते में भटक जाएगा। लेकिन एक ये है कि हम खुद उनको साथ ले जाकर उनसे मिलवा दें, तो फिर मार्फत हो कि भाई यही सोनू साहब के, ये है मार्फत। तो इसने कहा कि मार्फत क्या है हसन बिन अब्दुल्ला ने, मार्फत में क्या चीज़ है। तो इमाम ने कहा कि जाओ मदीने के फुक़हा से, उस टाइम मदीने के फुक़हा से जाके पूछो, या इनमें हदीस जाके याद करो। वह रिवायत में है कि हसन बिन अब्दुल्ला जबकि उस गिरोह के सबसे मुत्तकी परहेज़गार थे, 1 साल तक उन्होंने क्या याद किया, इनमें हदीस। फिर आया मौला के पास और कहा मौला हमने मार्फत हासिल कर ली है। तो इमाम ने कहा कि बताओ क्या क्या हासिल किया। तो वही नमाज, रोज़ा, ज़कात, यही सब। इमाम ने कहा बिल्कुल गलत। फिर ये हैरत में हुए कि आखिर वजह क्या छूट रहा है। तो फिर ये गए, फिर इमाम ने कहा कि जाओ इनमें हदीस के बाद इनमें मार्फत हासिल करेगा। जैसे इनमें रजाल है, बहुत सारे इल्म है, साइंस है, हर तरह का इल्म। तो इमाम ने कहा कि जाओ इनमें मार्फत है। फिर रिवायत में है कि तकरीबन 1.5 साल तक इन्होंने जो है इनमें मार्फत हासिल करने में मसरूफ है। फिर आए, अब इन्होंने कहा अब तो ये आखिर है, या तो इमाम से पूछ ही लेंगे कि है क्या वो चीज़, या हम जो है पूरा चीज़ हिफ्ज़ करके गए। और जाने का और क्या मौला, फिर वही मस्जिद में तशरीफ लाया, सलाम किया। मौला हमने जो है इतनी, और इनकी उम्र थी 80 साल, तकरीबन 80 या 85 साल। गए और जाने का कहा पूरा जितना याद किया था इनमें हदीस, इनमें फिक़ह, सारी चीज़ जो है इमाम को उन्होंने सुनाया। इमाम ने कहा बिल्कुल गलत, सब बातें। अब ये हैरत में आ गए कि आखिर हम किस दीन पे किस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। हैरत होगी भाई, इतना दिन से हम जो ये कर रहे हैं। तो इमाम से कहा कि मौला अब आप ही बताइए। तो रावी है, जो रावी बयान करते हैं कि यक एक बार इमाम की ज़बान से जुमला निकला कि या अली या अली या अली, 3 मरतबा निकला कि या अली या अली या अली। इसका मतलब ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम अहले मार्फत है। इनको आप मोहम्मद व आले मोहम्मद को देखिए तो आपको मार्फत नज़र आएगी। एक है कि अल्लाह की मार्फत हासिल करना, यकीन उन्हीं की मार्फत हासिल करना, ये तो अहले बैत उनके मज़हब है। अल्लाह के सिलसिले में इबादत में कहा गया कि अगर आप इबादत कर रहे हैं लेकिन बेमार्फत इबादत कर रहे हैं तो लायके कबूल नहीं है। पहचान के, मान के कुछ लोग आदि हो जाते हैं कि भाई अल्लाह को ना देखा जाता है ना पहचान, हमारी अकल जाहिल हो जाएगी। तो अल्लाह को पहचाने और माने पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन अहले बैत ने बताया अल्लाह की मार्फत,
अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्फत बता दे, थोड़ा तशरीह कर दे कि मार्फत कैसे हासिल हो और अल्लाह से कैसे करीब हुआ जा सकता है। यहाँ ईरान इराक में मुजतहिद जो है, फक़ह जो है, आयतुल्लाह तकी बहदत के सिलसिले में मिलता है कि यहाँ बैठ के वो नियत करते थे कि रोज़ा इमाम हुसैन पे जाना, चले जाते थे। एक वक्त में दो दो जगह नजर आते थे, न कोई गाड़ी की जरूरत, न चलने की जरूरत, लेकिन अमल ऐसा था, मार्फत के साथ इबादत किया करते थे, अंजाम दिया करते थे। तो आखिर मार्फत कैसे हासिल, कोई तो जरिया होना चाहिए। तो अक्सर आपने देखा होगा और हमारे वतन में भी हमने पढ़ा था कि होता ये है कि हम लोग सिर्फ पढ़ लेते, समझ के नहीं पढ़ते। कामयाबी समझ के पढ़ने में, एग्जाम में आदमी कामयाब वही होता है जो समझ के पढ़े के जाए, रट के नहीं। लेकिन हमारा ये नियत है कि हम मिसाल के तौर पर नमाज सलात उठा बैठी कर लेते, अंजाम समझते यही इबादत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इबादत उसको भी कहा गया, इबादत अभी बता दूँ, माँ बाप की खिदमत करना भी इबादत है, दूसरों को पानी पिलाना भी इबादत है, गरीबों का ख्याल रखना भी इबादत है। बहुत सारी इबादत की किस्में बहुत है, हमने खुतबे में दिया था, बहुत लंबी तवील है। लेकिन इबादत जो है समझ के रहना, वो ये मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे अल्लाह अकबर, यह नमाज आज़ानी के सिलसिले में पूछ लें अल्लाह अकबर की क्या मानी है, गवाही दे रहे हैं सिर्फ अरबी में अल्लाह हो अकबर, अब पूछे अल्लाह अकबर की क्या मानी है, तो मुँह देख रहे हैं। तो ये अल्लाह की वैदानियत जो आप मार्फत हासिल कर रहे हैं हमारे कहे तो अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, यानी इससे बड़ा कोई अजान के सिलसिले में देख ली, पूरे अजान का अगर उसका तर्जुमा पढ़े तो समझ में आए। इसी से नमाज के सिलसिले में आप देख लें, सुबहान रब्बी आला व बिहम्दे, क्या पढ़ रहे हैं, बस अरबी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है उसका दर्द वो नहीं समझ रहे हैं। तस्बीहात अरबा पढ़ रहे हैं, रुकू सुजूद क़याम पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्फत के साथ नहीं पढ़ रहे। अगर कोई इंसान मार्फत के साथ अमल अंजाम दे रहा है तो लाके वो कामयाब इंसान है। और ये ज़ात हमारे और आपके मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि वो मार्फत के साथ सारे अंजाम देते थे, इसलिए हर मैदान में कामयाब है। तो हम भी अहले बैत के चाहने वाले हैं और उनके पैरोकार हैं, उनको पैरवी करने वाले हैं। खास करके कहा जाए एक लफ्ज़ तो बहुत मैया में आला में जुड़ा, अज़ादार इमाम हुसैन, लेकिन दूर दूर तक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दूर दूर तक नहीं अमल में मिलता कि अज़ादार हम लोग कहाँ जा सकते हैं। जो अमल है अभी आपने दुनिया देखा, मुहर्रम आराम में देखिए, कहीं का भी आप देख लीजिए, कुछ ही लोग सही सलामत, लेकिन वही है हमने कह दिया था कि अलम हाथ में लिए हुए है, क्या अलम लिए मौला अब्बास का, मुंह में पूजा खा रहे, ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सी तहजीब है भाई। मौला का अलम उठा रहे उस शख्सियत का जो एकदम हमेशा इमाम हुसैन की पैरवी में पूरी जिंदगी बसर कर भाई की में जो है पूरा जान निसार कायम कर रहे थे। लेकिन मामला क्या है कि और हंसी है। दूसरी बात यह है कि इमामी का कौल है हमारे और आपके पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कि दुनिया में ज़िंदगी ऐसे बसर करो कि लोग तुम्हारे मिलने के मुश्ताक हैं, यानी मिलने की ख्वाहिश करें, तमन्ना करें कि काश हम उसे मिलते आज, और मर जाओ तो लोग ऐसे याद करें कि जैसे तुम जिंदा हो, बोले हाय वो आदमी चला गया, बहुत परेशान और बहुत ख्याल रखने वाला। ये इमाम का कौन है। और उनकी हुकूमत के बारे में तो हमने बता दिया, 4.5 साल हुकूमत कि इमाम ने अपनी हुकूमत में क्या क्या किया। तो इस कौल का क्या मतलब कि जब दुनिया में जिंदा रहो लोग तुम्हें मिलने की तमन्ना करें। ऐसे तो कोई किसी की तमन्ना मिलने की करते ही नहीं है,
लेकिन मिलना जुलना भी एक इबादत है। किसी के हाथ पुरसे करना, किसी से पूछ लेना क्या परेशानी में है, ये भी एक इबादत है। बेशक। तो ये बहुत इंसानी ज़िंदगी में जो है सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो अमल का। अमल जितना आप करेंगे उतने आप को निखार पाएंगे, या उतने आप को अपने आप कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाते हैं। मरने के बाद हमने ये चीज़ प्रैक्टिकल देखी हमारे मदरसे के मौलाना सैयद मोहम्मद इजी पैकर साहब, उनमें ये क्वालिटी थी। और पूरे लोग, यहाँ तक कि मैं खुद कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म उनकी इज्जत करते और मिलने की तमन्ना करते, हिंदू धर्म, क्योंकि उन्होंने अमली थे और उन्होंने कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया जिसके लोगों को तकलीफ पहुँचे। उन्होंने ये काम अंजाम दिया कि मौला के कौल के मुताबिक उनके जहन में था ये कौल। बहुत सारे अभी और मैं जैसे उन्होंने कहा कोई था कि कौन है, बहुत सारे ऐसे हैं जो उनकी गिबत उनके कौन है इस्लाह कर रहे हैं, खुद की इस्लाह है नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, दूसरे को झूठ बोलने की नसीहत कर रहे हैं, खुद दूसरे का माल खा रहे हैं, नंबर से दूसरों को हक मारने की। तो इस्लाम जो मजहब है ये नहीं कहता कि सिर्फ दूसरे को जो है आप नसीहत करते जाइए और अपने को वसीयत कर लीजिए। इस्लाम कहता है कि पहले खुद अमल कीजिए तब लोगों को दावत अमल दीजिए। लेकिन अभी हमारे कौम का इल्मिया या उलमा मौलाना का इल्मिया कह दिया, इल्मिया एकदम उल्टा है, दावत दिए जा रहे हैं, खुद में अमल। यही वजह है कि लोग अभी अमल ही नहीं कर रहे, गुमराह होते चले जा रहे हैं। आप देखें तकरीरों पे तकरीर, माशाल्लाह पटना में बहुत सारी मजलिस होती है इस सवाब की, लेकिन वहाँ की कौम जो सुधर ही नहीं रही है। लोग कह रहे हैं कितने बदतमीज है, मौलाना खड़े हुए ना पूछ रहे, खुद खा रहे हैं, तहजीब तवज्जो नहीं। बाहर से लोग बहत्तर ताबूत में आए हुए हैं और हमारे बगल में खड़े होते हैं, उनके सर पे पूरा टुकड़ा बोले खाना नहीं मिलेगा क्या। तो हमने कहा कि सरकार यहाँ के लोग खाने पे कामयाब है, खाने पे इस्लाम कहता है कि भाई मेहमान की इज्जत करो, चाहे वो किसी धर्म किसी फिरके से बिलोंग करते हो। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक जुमला हम कहा था किसी मजलिस में, खा पी के सो जाना ये इंसानियत की अलामत नहीं है, क्योंकि खा पी के तो जानवर भी सो जाते हैं। लेकिन असल इंसान वही है जो अपना मुहासबा नफ्स करेंगे कि आखिर आज की ज़िंदगी हमने क्या खोया क्या पाया, या यूँ कहा जाए कि क्या इल्म लिया, क्या एजुकेशन लिया और क्या नहीं लिया। ये बहुत अहम है। और मौला ने खुद ही कहा, जैसा कि हमने कहा कि मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया। दुनिया के बड़े बड़े मुफ्ती होगा परेशान है कि कैसे पहचाना जाए अल्लाह, लेकिन मौला ने फार्मूला खुद दे दिया कि अपने आप को, अब अपने आप को कैसे पहचाना जाए भाई। तो अपने आप को ये हाथ अल्लाह ने नेमत दी है, ये कान, ये आँख, ये पूरी बॉडी अल्लाह ने जिस्म जो है नेमत दी है। अगर इस नेमत पे आप गौर करते जाइएगा तो खुद अल्लाह की मार्फत चली जाएगी। साइंस क्या कर रही, तरक्की आँख के बारे में, कान के बारे में, माइंड के जहन के बारे में कि कैसे क्या सर्कुलेट करना है, तब जाके उस मकाम पे पहुँच रही। लेकिन साइंस वाले साइंसदान का भी कहना है कि हम जो इस मकाम पे पहुँच रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के जरिए, यानी उनकी किताब को पढ़ के। जैसा कि अभी कोई कह रहे थे नहजुल बलागा के सिलसिले, उनका दावा है कि नहजुल बलागा जो किताब है मौला की, साइंस वालों का दावा है और खुद ज़बानी कह रहे हैं, वो बाहर के हैं इंग्लैंड में केस पढ़ा, कि मैं हैरान में पड़ गया कि ये इंसान जो है इसके आने से पहले ये कायनात बनी है, इसके बाद बनी। तो सारी चीज़ें जो है बयान कर दिए जो आने वाली है, हम लोग तो अब पहुँच गए। तो उसने बजबते सीना ठोक के सेमिनार में कहा कि जो ये कामयाबी हमने ये लीजा की है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है
तसय्यो यानी तसय्यो का नाम लेके इस किताब का नाम ये नतीजा नहजुल बलागा, बलागा की नहर जिसे कहा जाता है। लेकिन हमारा हिंदी में क्या है, अब तो अवेलेबल हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और सारे लैंग्वेज में है, लेकिन हमारी कौम इससे फायदा नहीं उठा रही है। दूसरी कौम उठा रही है। कुरान करीम से प्रमोद आचार्य फायदा उठाते हैं। प्रमोद आचार्य आपने सुना होगा, जब भी आता हो उसने फायदा उठाया, खुद उसने कहा। और तकरीर में बहुत सारे, उन्होंने एक तकरीर में कहा कि मौलाए कायनात कहा गया, अमीरुल मोमिनीन को बहुत अच्छी बात कह दी थी, बड़े मजमे में कि मौलाए कायनात क्या है। इसका मतलब है इसी मुसलमानों के मौला नहीं है क्या, पहले तसय्यो के मौला नहीं है, कायनात के मौला, हम सबके मौला हैं। तो ये फिक्र, एक आदमी ने कहा कि ये फिक्र मौलाना लोग नहीं ले जा सकते। उन्होंने जो ये फिक्र बयान की, हकीकत में कायनात के मौला हैं, सबके मुश्किल है वो। अभी इसकी दलील ये है, मान जाए आप, कि हम रोज़े पे जाते हैं या आप जाते हैं, तो क्या सिर्फ हम ही लोग को मिलता है, जो लोग जाते हैं उनको नहीं मिलता सबको। या यूँ कहा जाए हमसे पहले उन्हीं को मिल जाता है, हमसे पहले वो दिल से मानते हैं और अकीदा रखते हैं कि भाई वाकई में ये वो दर है, और यकीनन यही वो दर है, दर आले मोहम्मद। कायनात में यही वो दर आले मोहम्मद है जहाँ सारी चीज़ आपको एक बार में मिल जाए। कोई दरवाज़ा, कोई घर ऐसा नहीं है कायनात में जिसे एक बार में सारी चीज़ मिलेगी। सिर्फ कमाल आले मोहम्मद का है, कमाल मौला कायनात का है कि जिस दर से सारी चीज़ आपको मिलती है। अब भाई क्या क्या इल्म अगर चाहिए तो इस दरवाजे पे आ जाइए आप, अखलाक चाहिए इस दरवाजे पे आ जाइए, तहजीब चाहिए इस दरवाजे पे आ जाइए, सखावत चाहिए इस दरवाजे पे आ जाइए, मोहब्बत उल्फत चाहिए इस दरवाजे, भाईचारगी अखुवत चाहिए इस दरवाजे। वो है कि सारी चीज़ें मुजस्सम होगी इस दरवाजे पे अवेलेबल है, मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत। लेकिन अब आप आइए, हमारा इल्म क्या है, हमारा इल्म और अकीदा क्या है, भाई दूसरों पे जाके बैठे हुए उन्हीं के आस में। जबकि अहले बैत का थोड़ा दरवाज़ा आना है कि भाई बड़े बड़े लोगों को मिला है, क्योंकि उसका वाक़या आपने सुना। लेकिन वह ये कि सच्चे दिल अकीदे से मांगना है आपको, दूसरे से आस लगाए हुए गरे आले बैत पे आ जाइए, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बयान कीजिए, लेकिन याद नहीं है कि अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों या बच्चियों को विरासत में कोई चीज़ देना चाहते हैं, वो सबसे अच्छी विरासत अगर कोई है इस जीवन में तो वो है मोहब्बत अली। इससे अच्छी विरासत कुछ नहीं है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा विरासत के चक्कर में, जैसे वालिदैन का इंतकाल हुआ, जमीन बंटवारा, घर बंटारा, पैसा बंटारा, लड़ाई चालू हो गया। लेकिन हदीस में क्या है कि सबसे अच्छी विरासत अगर कोई है वो क्या है, अहले बैत की मोहब्बत। उनके वालिदैन उनको अगर कुछ नहीं दिए हैं तो मोहब्बत अली दिए हैं, तो ये सबसे अच्छी विरासत है। अब ये जो एक जुमला है कि सबसे अच्छी विरासत, सिर्फ इसलिए हम नहीं कह रहे लफ्ज़ाजी में, नुक्ताबाजी में, बल्कि मोहब्बत अली का मतलब सिर्फ मोहब्बत अली से मोहब्बत करना नहीं है। मोहब्बत अली का मतलब इज्जत, मोहब्बत अली का मतलब शोहरत, मोहब्बत अली का मतलब निजात, मोहब्बत अली का मतलब अखुवत, यानी सारी चीज़ मौला कायनात में मौजूद है। और अगर आप मोहम्मद अली से मोहब्बत करें तो सारी चीज़ हमें मुजस्सम तौर पे नजर आएगी। इस बात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ये है मौला कायनात की फज़ाइल। वो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई कुरानी से पढ़ा जाए। अब आइए कि कल तो आयत के जरिए बोला था, अब आप आ जाइए कि मौलाए कायनात के फज़ाइल अगर सुनना है तो बज़बाने नबी सुनिए।
बदलाने नबी सुनिए कि क्या फजाइल। तो नबी ने पहले तो ये बताया था हमने कि भाई आखिर में रसूल, हमने एक मजलिस में कह दिया था कि अभी हम लोग अच्छे से रसूलुल्लाह को भी नहीं मानते, तो भाप हो गए थे लोग, पहले सुन्नत भी थे वहाँ हमारे। हमने कहा अगर मान लेते तो उनकी बात मानते। अगर देखा जाए ज़बानी इकरार कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, नारे लगा रहे हैं, लेकिन अगर उनको मान लेते तो उनकी बात ज़रूर मानते, इसलिए कि उन्होंने जो कहा है वो अल्लाह के वही के मुताबिक कहा, उनकी बात को ज़रूर। इसका मतलब है कि आप जैसे लिबास में है मुसलमान और ज़बानी मुसलमान हैं, पैरोकार वाले, उन्होंने कह दिया कैसे भाई, हमने कहा कि रसूल अल्लाह ने बार बार मुकम्मत पे कहा कि अली से मोहब्बत करना अहले ईमान है और अली से बुग़्ज़ करना निफाक की अलामत है, तो आप क्यों नहीं मोहब्बत कर रहे हैं? हालांकि ये मोहताज नहीं है। रसूल अल्लाह ने कहा कि अला मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली इसके दरवाज़ा है। फिर कहा कि हम और अली दोनों एक ही मुँह से हैं, एक टुकड़ा मोहम्मद दूसरे अली। गदीर कुम में जो है रुकवा के 1.25 लाख आदमी मदीने में कहा जो आगे बढ़ गए हैं, वो तो अहम पैगाम था। क्या कहा कि लोगों, पहले ही कह दिया कि लोगों जो मैं बोलूँगा उसको मान रहे हो, कासम ने या रसूल अल्लाह, सारी बात है उन्हें आप मान लो। लेकिन मामला क्या हुआ, मौला ने कहा, नबी ने कहा कि मन कुल तो मौला आज़म, मैं जिस आज से मैं जिस चीज़ का मौला उसके लिए। लेकिन लोगों ने क्या माना, बस ज़बानी इकरार के लिए जी रसूल अल्लाह, उसके बाद से फरामोश कर दिया। और मौला के मानी देखा जाए तो लोगों ने दोस्त क्या क्या के लेते हैं। हालांकि मौला के मानी नबी ने कह दिया कि मौला के मानी मददगार, जैसे मैं लोगों की मदद करो वैसे अली लोगों की मदद करे। और उसी रसूल के कुरान में कसीदा भी है। कभी कुरान में कहा कभी कुरान में कहा यासीन, कभी कुरान में कहा मुज़म्मिल, कभी कुरान में कहा सिराजुल मुनीर, और कभी कुरान में ये कह दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ रसूल हमने आपको इस दुनिया के लिए, आलमीन के लिए बाइसे रहमत बना के भेजा, बाइसे रहमत बनाकर भेजा। इसी रसूल के कायनात, मौला कायनात जो हसनैन के बाबा हैं, जो ज़ैनब के बाबा हैं, जो हसन हुसैन के बाबा, मौला कायनात की ज़िंदगी का अगर दस्तूर हयात आपको चाहिए तो मौला कायनात की ज़िंदगी को आप पढ़िए। उनकी ज़िंदगी में जैसा कि कल हमने कहा था कि उनकी हुकूमत में कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला जो भूखा सोया हो। उनकी हुकूमत में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो भूखा सोया। लेकिन हमारा इल्मिया इंसाफ से बोलिएगा, हम तो मिंबर से पढ़ते हैं तो हम डरते नहीं हैं। जो मैंने कह दिया कि आप नहीं पढ़वाइए, मंदिर दूसरे पढ़वाएं, क्योंकि हक बात यहाँ से होना ज़रूरी। तो हमारा इल्मिया क्या है? हमारा इल्मिया ये है कि मौला कायनात सुन लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन हमारा इल्मिया ये है कि अगर बगल में पड़ोसी बीमार है और पता चल जाता है तो नहीं जाते। क्यों? इसलिए नहीं जाते हैं कि हो सकता हमारा पैसा लग जाए, हमसे कुछ मांग ले, ये हालत है। हमारा इल्मिया ये है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, इस्लामी तालीमात में कहा गया है कि पड़ोसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मौला कायनात की ज़िंदगी में देखिए, खुद नहीं खाते थे, दूसरों को खिलाते थे, खुद ज़रूरियात की चीज़ें नहीं खाते थे। घर में दस्तरखान लगा हुआ, शेरी का वक्त है, मौला की बेटी ने कहा, अपनी बेटी के मेहमान है, 3 लुक़मे अली ने खाए, बस 3 लुक़मे, दूध, नमक और एक और अशिया थी जो बेटी ने ला के रखा।
तो मौला ने अजीब अल्फाज में कहा कि क्या बेटी तुमने ये देखा है कि एक बार में मैंने इतनी सारी नेमत खा लूँ? मुझे खौफ है अल्लाह का कि कहीं मैं ये गजा खा लूँ नेमत और मेरे बगल वाले जो है भूखे सोए। देखें क्या कहा मौला ने कि मुझे खौफ है अल्लाह का कि मैं इतनी सारी नेमतें खा लूँ और मेरे बगल वाले भूखे मर रहे हैं, तो भूखे हो। लिहाजा तुम इस दस्तरखान से ये नेमत, एक नेमत रहने दो, बाकी सारी चीज ले जाओ। वो मौला ने जो है नमक रहने दिया, बाकी सारी चीज नेमतें। अब इसका मतलब ये मत निकाल लिया कि भाई हम लोग नहीं खाए सॉरी भाई के इमाम का कौन है सॉरी में हम लोग नहीं खाए क्योंकि इंसान है भाई, कहीं को जाना है। इसका मतलब ये है कि आप खाइए लेकिन बेहिसाब नहीं करें और दूसरे के बगल पड़ोसी का ख्याल रखें। यानी 10 चीज़ आपके पास है तो कम से कम उसमें से 5 या 2 चीज़ें वहाँ पहुँचा दीजिए। कम से कम 5 चीज़ें वहाँ पहुँचा दीजिए। ये है ना जिंदगी है। लेकिन एरिया हमारा बहुत अलग है। प्रैक्टिकल लाइफ देखा जाए या इस्लामी लाइफ में देखा जाए जिंदगी इससे बहुत दूर है, बहुत दूर है। ऐसे कहते हैं कि हम लोग बहुत आगे पैमाने पे ऊँची जात हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा, दूसरे इस्लामी के दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि जितना ऊंचा इस्लाम है और जितने ऊँचे आप तसव्वुफ थे उतना नीचे चले आए, या इल्म के मैदान में और किसी मैदान में, क्योंकि अमल ही नहीं है तो नीचे आएंगे ही। मौलाना लोग कहते रहते मजलिस में कि भाई DSP डॉक्टर सब चीज़ बनाइए अपने बच्चे को, लेकिन बने कैसे भाई? बोल के तो निकल जाते हैं मौलाना लोग, बोल के निकल जाते, कोई रास्ता नहीं देते ना कोई प्लेटफॉर्म देते हैं। हमारे अहले सुन्नत भाई का ये है कि अगर आप DSP UPSC कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो वो लोग एक प्लेटफॉर्म बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, और 10 लोग मिल के उसको चला रहे हैं और उस बच्चे को कामयाब जिंदगी करा रहे हैं और आगे निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कोई प्लेटफॉर्म हमको नहीं दिखा अभी तक, कहीं भी ये पोजीशन ये सिस्टम कहीं नहीं देखा कि इनके मैदान में आगे बस बोलना है, सब बोल के निकल जा रहे हैं, लेकिन अमली या कोई मरकज किसी में नहीं बना। ये वजह है कि बेचारे दर दर भटक रहे हैं और हौसला है लेकिन पैसा नहीं है, हौसला है बुलंदी है लेकिन पैसा नहीं है। तो भाई खास करके बोलना और करके दिखाना और हमारे आइमा मासूम ने जहाँ जहाँ बोला है उससे पहले अमल किया है। ज़िंदगी पढ़िएगा 14 सितारे किताब है, उसमें आइमा की ज़िंदगी पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि पहले हर चीज़ में अमल। अब ज़कात के मामले में मौला कायनात की बात आ गई है तो हालत रुकू में कोई ऐसा इंसान अभी तो ज़कात देने की बात आए तो बहुत उसके पास है, वो भी करे नहीं जानते कि ज़कात क्या, लेकिन ये कायनात के वाहिद इमाम है, ये हालत रुकू में भी ज़कात। साहिल ने कहा कि है कोई मेरी मदद करे, इमाम ने अपनी अंगूठी इशारा के वो निकाल के सोचे हमारा इमाम का। और बाद लोग क्या ये है कि भाई रवायत है कि हालत नमाज में अगर इधर उधर देखा जाए या नियत बदला जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन ये अली ने कैसे कर दिया नमाज उनकी, उनका वक्त को पता ही नहीं, जो है नमाज हो उनकी नमाज कैसे चली जाएगी। या हमने कहा मिसाल के तौर पर मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह खुतबा तोड़ के क्यों गए थे मौला हुसैन के सामने, सबको तो पता था लेकिन जान रहे थे कि यही रुए नमाज है, यही है ना। हालत सजदा में कितनी मरतबा सुभान रब्बना था, 3 मरतबा आया, 70 मरतबा, क्या जरूरत थी 3 मरतबा कह देते। लेकिन लोगों को बताना था कि देखो यही रुए नमाज है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी करबला में जो नमाज आखिर सजदा किया इसी नमाज को बचाने के लिए। और हमारी ज़िंदगी
किसी नमाज की पाबंद होना चाहिए। ये नमाज तो वाजिबात में से है, मुस्तहब पढ़े या न पढ़े, मुस्तहब हम भी नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने कहा कि वाजिबात को आपको अदा करना। बाद लोग मुस्तहबात पे ज़्यादा चले जाते हैं, वाजिबात को तर्क करते हैं, लेकिन वाजिबात की जो अदायगी है वो मुस्तहब से, यकीनन मुस्तहब में सवाब है, लेकिन वाजिबात आप पहले अदा कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा, एक और वाक्य उसके बाद मौलाए कायनात के नाम में अपनी तस्वीर इतना सीखा है, हम पढ़ा तो ये नहीं पढ़ा कि जनाब इंस बोलते हैं कि हम हज से रवाना हो रहे थे कि रास्ते में एक ख़वातीन के रोने की, गिरिया करने की या दुआ करने की परवरदिगार ये वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, बहक़ अली का, मेरी आँख की रोशनी दे दो। मौला कायनात का वास्ता दे के वो दुआ लौटा। उसने तो सोचा कि कोई गरीब उरीब है, निकाला दिरहम के हवाले। उस ख़वातीन ने कहा कि मुझे ये दिरहम, ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ जो है अपनी आँख की बिनाई चाहिए, रोशनी चाहिए। क्या कहा? रोशनी चाहिए। फिर वो हैरत अंगेज हुआ, फिर चला गया। फिर वापसी में उसने देखा कि उसी मकामात पे वो ख़वातीन मौजूद है और उसकी आँख की बिनाई आ चुकी है। तो उसने दरियाफ्त किया कि आखिर क्या वजह, देख रहे गए, पूछे कि माजरा क्या है, आखिर क्या हुआ कि हम गए थे तो आपकी आँख की बिनाई, लेकिन रिटर्न हुए तो आपके आँख की बिनाई आ चुकी है। तो उसने कहा ख़वातीन ने कि हम रोज़ ऐसे ही दुआ कर रहे थे, एक दिन एक शख्स आए, शख्सियत आई, दुआ कर रहे थे, उन्हें कहा कि ये क्या माजरा है। तो इसकी ज़बान पे था, क्या था कि परवरदिगार अली के हक़ का वास्ता मेरी आँख में बिनाई दे। तो उस शख्सियत ने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह, अगर वाक़ई में ये अली के चाहने वाली है, वाक़ई में ये अली के मानने वाली, इसको अली से मोहब्बत है, तो तुम्हें वास्ता है कि रहीम करीम इसकी आँख की बिनाई को। इसका ख़वातीन का कहना है, ये 14 सितारे में वाक़या है कि जैसे ही वो ये दुआ करके गए, उसकी आँख की बिनाई वापस आ गई। फिर उस शख्स ने कहा, नहीं सोचा, उसने कहा कि आखिर वो शख्सियत कौन थी कि जिसके हाथ उठाने ही से सीधा हमारी आँख की। तो ख़वातीन का कहना है कि नूरानी चेहरा था अपना, जिस हिसाब से उसने बताया। तो ख़वातीन ने अपने ज़बान में कहा, शायद ये मेरे मौला अली तालिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ करके गए मेरी आँखें बिनाई, और यकीनन अहले बैत की दुआ में और हमारी दुआ में काफ़ी बहुत फर्क, बहुत दूर दूर तक रास्ता। दुआ का सलीका, अगर आपको दुआ कैसे मांगना है तो सही से समझानिया पड़ेगी। चौथे इमाम की दुआ की पूरी किताब है, दुआ कैसे मांगी जाए, पूरा खुतबा। इमाम का खुतबा हम लोग क्या ये है कि दुआ जो है पहले खुद के लिए मांग लेते हैं, फिर दूसरे के लिए, जबकि इमाम ने बताया कि पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे, फिर अपने लिए। लेकिन इंडिया यही है, तकरीर के सिलसिले में भी दुआ, मौलाना ये कोई भी हो, बड़े बड़े आयतुल्लाह में जो आप पढ़ेंगे, तो उसमें हमने इसी रमज़ान मुबारक में लखनऊ से किताब छपी है, इस्लाम उसी में पढ़ा था कि उन्होंने, हम जब खुद पढ़ा तो हम खुद भाग हुआ है कि उन्होंने लिखा कि अगर कोई नंबर पे आ रहा है कुछ भी तकरीर करें, तो सबसे पहले हक ये है कि वो अल्लाह की हमको सना करें, परवरदिगार की हमद करें, उसके बाद अहले बैत के फज़ाइल बयान कर, फिर उनको कोई बात नहीं। लेकिन इल्मिया क्या होता है हमारे यहाँ, मौलाना जो है पहले कहानी चालू कर देते अपने, इतने दूर से आए, थक के आए, बड़ी मुश्किल से पहुँचे। लेकिन जबकि ये सब गलत है,
खुद कह दिया है कि भाई आप आइए और मौला अली का खुतबा आप जो नजर अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जो खुतबे में हम पढ़ रहे थे, ये नहजुल बलागा का पहला खुतबा है इमाम का। इसमें मौला ने फरमाया कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए जो ज़मीन व आसमान का सारा वैदानियों के ऊपर है। इमाम ने पहला खुतबा वैदानियों से तो वो परहेज करना चाहिए। इमाम के सिलसिले में इमाम ने कहा कि मैं अल्लाह की मौला कायनात है कि मैं अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करता जन्नतों और जन्नत की लालच और जन्नत को नहीं, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ कि वो लायक इबादत है। और मेरे फक्र के लिए ही काफी है कि मैं उसका बंदा हूँ। इस पे ये फक्र जो है इसके भी 1 घंटे की बंदिश है कि हमारे यहाँ फक्र किस चीज़ पे किया जाता है और हमारे बाप ने किस चीज़ पे फक्र किया है। हमारे यहाँ इज्जत दौलत शौहरत गाड़ी बंगला बसो इसी पे फक्र, लेकिन हमारे बाप ने कहा कि हमारे फक्र के लिए बस यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ बस। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपने मौका दिया तो फिर इंशाल्लाह कभी अहम गुफ्तगू। बस ये चंद पैगाम थे जो आप तक पहुँचाना था। और एक पैगाम ये कि अभी से लेकर सुबह मुनासिब से पहले ये कलमात अपने जवान पे मुसलसल जारी सारी रखें। अल्लाहुम्मा लान क़तलता अमीरल मुमिनीन, तुम्हें मुल्ज़िम पे लानत भेजते रहे, मौला के कातिल पे आज की सब खुसूसन आप जिंदा दवाते रहे। बस बता रहे मेरे मौला से पहले भी कल जो मेरे सवाल है जब कहीं मजलिस बर्पा होती है, देखें मसाइल के सिलसिले में उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी को रोना ना आए तो अपनी सर नीचे झुका लेना चाहिए। मतलब कि हरम में किसी आलम दिन पढ़ रहे थे तो अभी मौका हुआ था कि अगर किसी को रोना नहीं आ रहा है तो वो अपना सर झुका ले मसाइल में। तो ये तरीका कर रहा है। बस मसाइल की पहली मंजिल तो ले आया कि अज़ा दौरान मजलूम में करबला जब कहीं मजलिस बर्पा होती है तो कोई आए या ना आए, शाम से ज़ैनब चली आती है और जन्नतुल बकी से फातिमा ज़हरा चली आती है और कहती है बेबे मम्मी जान है मादरे ग्रामी, ये लोग कौन रो रहे हैं, ये लोग कौन गिरिया कर रहे हैं, ये लोग कौन बुका कर रहे हैं। तो बीवी फातिमा ज़हरा फरमाती है ए बेटी ज़ैनब, ये तेरे भाई के अज़ादार है, ये तेरे भाई के गमखार है, ये तेरे भाई की मजलूमियत पे रो रहे हैं, ये बीवी की बेपर्दगी पे रो रहे हैं। अज़ादारों इतना सुनना था कि बीवी ज़ैनब फरमाती है ऐ मादरे ग्रामी, ऐ मादरे ग्रामी, जब ये रोते हैं तो न इन्हें कोई ताजियाने मारने वाला है, न इन्हें कोई रोने से रोकने वाला है, न इन पे कोई पाबंदी है। लेकिन हाय जब मैं रोती थी तो मुझे पाबंदी लगाई जाती थी, मुझे ताजियाने मारे जाते थे, मुझे रोने से रोका जाता था। अज़ादारान मज़लूम करबला आज रमज़ानुल मुबारक की सब 21वीं है। मेरा मौला अपने घर में है, बिस्तर अदालत पे है। हसन और हुसैन को बुलाया और कहा बेटा मेरी कुछ वसीयतें हैं। इमाम ने अपने बेटों से वसीयत की, ऐसी वसीयत कहा नहीं बल्कि कहा है हसन और हुसैन कागज लाओ कलम लाओ, ये वसीयतें लिख लो, इसलिए कि ये वसीयतें लिख लो। और वसीयत में क्या लिखा है मेरा मौला ने ये लिखाया कि हसन और हुसैन देखो मदीने में कूफे में कोई जो है यतीम भूखा नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा मौला हाय आपको यतीमों से इतना प्यार, यतीमों से इतना लगाव, लेकिन हाय आपका बेटा करबला के मैदान में 3 रोज का भूखा मारा गया।
अज़ादारान मज़लूम करबला, जब इमाम ने ये कहा कि वसीयत लिखा और कहा कि ये बेटो ये अमल अंजाम देते रहना। अज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम सवेरे की ईस्वी की सुबह निकले मस्जिद की तरफ गए और जाने के बाद देखा कि इब्ने मुल्जिम लेटा हुआ है मस्जिद में। कहा है मुझे इब्ने मुल्जिम अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम, मुझे पता है तू किस मकसद से आया है, तुझे क्या करना है, तू मेरा कत्ल करने आया है। इब्ने मुल्जिम तलवार की जहर बुझाई हुई अपने पेट के नीचे रखा हुआ था। इमाम ने उसको जगाया और उसके बाद गुलदस्ता आज़ान पे गए और जाके कहा अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ादारों इतना सुनना था कि कूफे में कोहराम मच गया। सबने कहा ये तो अली आज़ान दे रहे हैं, क्या हुआ अली आज़ान दे रहे हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला इतना सुनना था कि मेरा मौला आज़ान देने के बाद नमाज की पहली रकअत के पहले सजदे में गया था कि इब्ने मुल्जिम ने कैसा वार किया कि इमाम का सर भिगा गया। कूफे में ये आवाज पड़ी कल कुतला अलिया, हाय अली कत्ल कर दिए गए, हाय अली कत्ल कर